بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 16 مئی ہے سال 2022۔ کپتان سے بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں، بات لانگ مارچ سے کہیں آگے جا چکی ہے۔ جنرل باجوہ کو اب نواز شریف کی دھمکیوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ کیا اگلے 72 گھنٹے میں حکومت ختم ہونے جا رہی ہے؟ فیصلے کریں یا گھر جائیں، دو ٹوک پیغام پہنچائے جا رہے ہیں۔ بڑی عام ڈیولپمنٹس ہیں، پوری گیم الٹ چکی ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، توقع یہ تھی کہ 2-4 جلسے ہوں گے اور اس کے بعد یہ بیٹھ جائیں گے اور پھر آرام کے ساتھ یہ بھان متی کا کنبہ حکومت کرے گا، لیکن یہ تمام منصوبے ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور جب قوم ایک طرف ہوتی ہے تو ظاہر ہے ادارے ایک حد تک جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں، ورنہ پھر وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہمارے اداروں نے کہا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہے، تو اب یہ جب حکومت آ گئی ہے تو لازماً ان کو پھر بھی نیوٹرل رہنا ہے۔ اب وہ صحافی جو پہلے آپ دیکھتے تھے کہ وہ تعریف کر رہے تھے کہ دیکھیے جی اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو گئی ہے، جب لوگ یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس اپوزیشن کے ساتھ مل کر، یہ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو الٹا ہے، تو یہ اس وقت کہتے تھے نہیں بھائی پہلی مرتبہ تو نیوٹرل ہوئی ہے تو آپ جشن منائیں۔ اب یہ جو حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے، جیسے یہ کہیں جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم وہ دوڑیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو اب ان کی طرف سے بھی جو نیوٹرل کا پیغام ہے وہ بالکل واضح ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر یہ ساری صورتحال کس طرح واضح ہو رہی ہے، لیکن متبادل طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی نے ایک حکمت عملی تیار کی ہے۔ اگر رانا سانگا اور رانا ثناء اللہ جس طریقے سے اس کو وزیر داخلہ بنایا گیا اور جس طرح وہ دھمکیاں دے رہا ہے، تو جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور لانگ مارچ سے آگے اب لاکھوں کروڑوں جتنے لوگوں کو بھی گرفتار کریں گے۔ تو کیا آپ حکومت کر پائیں گے؟ اس حوالے سے ایک بڑی عام خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت مخالف لانگ مارچ سے قبل جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی کامیابی سے تحریک کا حصہ بننے کی درخواست کارکنان کی بڑی تعداد نے اپنے شناختی کارڈ عثمان ڈار کو جمع کروانا شروع کر دیے۔ پی ٹی آئی نے یہ سرپرائز اور اس طرح کے اور سرپرائز بھی تیار کر لی ہیں۔ اگر یہ شہباز حکومت بات نہیں آتی، چونکہ ان کو رنج ہے، ملال ہے، جس طرح کی مریم نواز زبان استعمال کر رہی ہے، جو ان کا لہجہ ہے، جو مایوسی جھلک رہی ہے، تو وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جس طرح انہوں نے بپا کیا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو حکمت عملی پوری طرح تیار ہے، پلان اے بی سی بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے پاکستانی قوم نے جو سرپرائز دیا ہے، اب ادارے جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طریقے سے نواز شریف نے یہ ساری کہانی بتائی ہے، لیکن آج کل جو ہے انصار عباسی صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے آج ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم کے اندر ایک بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ تو یہ دراصل صرف انصار عباسی کا یہ میسج نہیں ہے، بلکہ یہ اوورال ایک کورا جواب ہے مسلم لیگ نون کا، اور یہ آپ دیکھیے گا اور اس پر عمل درآمد ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ اگر فیصلے نہیں کرنے تھے تو حکومت لی ہی کیوں تھی؟ ایک ایک دن انتہائی عام اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی طور پر پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ میں بڑی عام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن یہ کالم انتہائی اہمیت کا عمل ہے، یہ ذرا آپ ضرور سماعت کیجیے گا۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو جو نتائج ہوں گے اس سے نہ صرف مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، بلکہ پاکستان کی صورتحال سری لنکا سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری معیشت کو بدترین صورتحال کا سامنا ہوگا، ملک کو خدا نخواستہ خانہ جنگی کا ممکنہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کو فیصلے کرنے چاہیے کہ وہ لندن میں نواز شریف کے ہاتھ میں یہ فیصلے ہیں، یا پھر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی یہ مرہون منت ہے
शहबाज शरीफ को वजीर आजम इसलिए बनाया कि वो परफॉर्म करने वाले सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के हाथ और पांव बांध कर रख दिए गए और फिर तवक्को ये की जा रही है कि वो फैसला भी ना करे और मुल्क को इस मुश्किल से भी निकाले। अब यहाँ पर जो है वो चले उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब ये बात मत करे, वो कहते हैं कि इमरान खान ने क्या ठीक किया क्या गलत, हुकूमत ली है तो फैसला करें। अब जिम्मेदारी इत्तेहादियों की बिलअमूम और नून लीग की बिलखसूस है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो इसमें मौजूदा हुकूमत बरी जिम्मा नहीं हो सकती। एक दिन कीमती है, अगर फैसले नहीं करने थे तो इमरान खान की हुकूमत क्यों खत्मी और खुद हुकूमत में क्यों आ बैठे। अब ये सारी कॉमन सी बातें करने के बाद वो कहते हैं कि लंदन में 3 से ज्यादा दिन जाया कर दिए गए मगर कोई फैसला नहीं किया। फैसला नहीं करने तो हुकूमत छोड़ दें, वक्त मत जाया करें। ये 2 वज़राए आज़म और 2 वज़राए खारजा वाला खेल नहीं चल सकता। मैंने पहले ही कहा था कि इमरान खान को मत निकालें, अगर निकालें और फौरी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि दर्जन बार इत्तेहादियों के साथ कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और यहाँ इस हुकूमत से तो तवक्को नहीं की जा रही कि बड़े फैसले करे। नवाज शरीफ तैयार है, ना फजल रहमान और ना ही जरदारी। मेरी तो शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि आज ही इस्तीफा दे दे ताकि नई हुकूमत आए और पाकिस्तान को बचाने के लिए फैसले करे। नून लीग ने पहले गलत फैसला किया, इमरान खान की हुकूमत गिराने के ये मंसूबे में शामिल हो गई। अब नून लीग एक और बहुत बड़ी गलती कर रही है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगी। श्रीलंका खुदा न खास्ता पाकिस्तान बना तो ये जिम्मेदारी अब पीटीआई और इमरान खान पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि इसका जो असल हिस्सा है, जो ये कंधे पर बोझ उठाना है, ये आपने उठाना है। तो ये एक बड़ा उन्होंने अपने अंदाज के अंदर एक मैसेज भी दिया है और ये मैसेज ओवरऑल इस वक्त बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी दिया जा रहा है और वो मैसेज यही है। और दूसरी तरफ अब चूंकि ये हुकूमत के अंदर आए हैं और ये 2 टोक पैगामात भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं, जब ये पता चला है कि भाई ये तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने जो है ये हुकूमत रहे, हम IMF के साथ बातचीत करें, कुछ पैसा हमें मिल जाए सऊदी अरब से, UAE के थ्रू कुछ मिले, तो उसके बाद हो सकता है हुकूमत खत्म हो जाए, तो ये हमारे फिर घाटे का सौदा है। तो इमरान खान को आपने संभालना है। ये नवाज शरीफ वाज़े तौर पर ये जो लंदन के अंदर पीछे ये पूरे नून लीग जमा हुई है, ये बाकायदा इसको कंफर्म किया जा रहा है। उसने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान को संभालती है, यानी उसके साथ कैसे निपटना है, कोई उसके खिलाफ झूठे केसेस दाखिल करने हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, कोई गिरफ्तारी अगर हम करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ खड़े हो, अगर हम कोई तशद्दुद करें या एक अनारकी की तरफ मुल्क को लेकर जाएं तो हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये एक वाज़े पैगाम नजम सेठी जो मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने जो बातें की है वो दरअसल नवाज शरीफ का ही पैगाम है। यानी उनको ये लगता है कि हुकूमत तो हमारी मिल गई है, लेकिन हम अगर कोई इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट बदल भी सकती है। तो अब नए इंतखाबात जनरल बाजवा चाहते हैं, जो अवाम का प्रेशर ज़ाहिर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके खिलाफ तो खड़ी नहीं हो सकती। एक तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम की गालिब अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ जनरल बाजवा, कितनी देर दूसरी तरफ जनरल नदीम अंजम खड़े हो सकते हैं। ये इदारों की एक हद होती है, एक राय है, जब अवाम सामने आ जाए तो फिर वो राय तब्दील भी हो सकती है। तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये जो इत्तेहादी है, इनको धचका ये लगा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि जल्द इलेक्शन हो, और ये अगर इलेक्शन होते हैं तो हम तो मारे गए। अभी इलेक्शन होगा तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएगा, तो हमें इस पूरे जो मश्क है जिसका हम हिस्सा बने हैं, तो कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो गए। तो अब नवाज शरीफ जो है वो धमकियों पर उतर आया है और दूसरा ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि भाई इंतखाबात होते हैं तो हमारी जीत जो है वो ज़ाहिर है आप यकीनी बनाएं। तो नवाज शरीफ ने वजीर आजम को इत्तेहादियों को इंतखाबात पर आमादा करने का टास्क दिया है। ये जराए दावा कर रहे हैं सख्त फैसले कराने भी हैं, तो यकीन दहानी कराई जाए कि इंतखाबात 2023 में होंगे। सख्त फैसले तब किए जाते हैं जब कुछ अरसे बाद तदारक भी किया जा सके। तो ये एक बड़ा वाज़े किस्म का जो मैसेज है वो नवाज शरीफ ने दिया है। अब इमरान खान को किसी किनारे लगाएं, यानी आप देखें ना, आप ये रौनक देखें, ये तकब्बर भरा लहजा देखें। मुजरम इश्तिहारी शख्स है, लंदन में बैठा है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वो करप्शन के अंदर मतरूब है और सफेद
दिन की रोशनी में झूठ बोलकर वो बंदा प्लेटलेट्स गिर गए, वो बैठ के इस वक्त पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। और इतनी बददियांती और खयानत और अजीब किस्म के जो मामलात हैं वो इस मुल्क के अंदर हैं कि वो जो शहबाज स्पीड बड़ी तेज है जी। सुबह 7 बजे वो एक पागल शख्स उठ के चल पड़ता है और वो नींद उसको नहीं आई, तो लिहाजा इस वजह से अब मीडिया के अंदर शहबाज स्पीड है। 5 दिन से वो बंदा मुल्क में नहीं गया, गैर हाजिर है। पंजाब की गवर्नमेंट अभी तक बनी नहीं है, और वैसे ही वो बन भी गई तो उस मुनारफ अराकीन के हवाले से केस खिलाफ फैसला आ जाना है। तो इस स्पीड को चाटना है लोगों ने। पिछले 5 दिन से वो इश्तिहारियों के साथ लंदन के अंदर बैठा हुआ है। तो ये एक बड़ा आम ये फंस गए हैं। और अब ये जो दावा है ना जी कि इमरान खान ने मईशत को बर्बाद कर दिया था, तो इसलिए भाई इमरान खान इसके अंदर पनाहगाहें चला रहा था, सेहत कार्ड दे रहा था, हर एक मईशत मजबूत थी तो दे रहा था, इसके साथ सब्सिडी भी दे रहा था। वो तो सारे वो काम कर रहा था और मईशत एक ट्रैक पर चढ़ पड़ी थी। आज भी स्टॉक एक्सचेंज में जब मैं आपसे मुखातब हूं, ये यानी 1100 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है, अरबों रुपए का सरमाया डूब रहा है, डॉलर $1.5 बढ़ गया है। तो मजीद आप देखिए ना 194-95 पर जब डॉलर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो ये जो स्पीड है ये हमें चाहिए थी। इमरान खान को सिर्फ हटाना था आपने, और आपके पास कोई प्लान नहीं था। आप समझते थे कि सिर्फ हम ये टिकर चलवा देंगे कि शहबाज शरीफ ने ये भी नोटिस ले लिया, ये भी ले लिया, तो इससे काम चलेगा। तो अब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने पैगाम देना शुरू कर दिया कि भाई नए इलेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अवाम का प्रेशर है, इमरान खान जो है उसके साथ कौम है, ज़ाहिर है हम इससे ज्यादा मुआवनत नहीं कर सकते। तो कप्तान का जो प्रेशर है वो भी काम कर गया। और कुछ सेकंड लाइन जो लीडरशिप है पीटीआई की, ये भी जराए बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनके साथ भी एस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है। और इसके साथ ही इंपोर्टेड हुकूमत, जिस तरह आज इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा, उसके अंदर 2 टोक पैगाम नवाज शरीफ का जो है वो पहुंचाया जाएगा। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो आइंदा 72 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ये हुकूमत जो है असम्बलियां तहलील करके खत्म हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता उस इजलास के अंदर कहा गया कि भाई आप इमरान खान के खिलाफ तशद्दुद करें, जो आपने करना है करें, हम आपके साथ खड़े हैं, या ये कि आप मामलात जो है वो हैंडल कर लें, तो फिर हम आपको 2023 तक कहीं जाने नहीं देंगे, तो फिर ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी। और ये मैं समझता हूँ फिर अना तकब्बर इस मुल्क को ले डूबेगा। और अगर कल को मुल्क डिफॉल्ट हुआ और किसी भी नेज पर पहुंचा और कोई इसराइल को तस्लीम करने का या किसी बुनियाद पर अगर कर्जे लिए गए और इस तरह के हालात हुए, तो वो सिर्फ ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं बल्कि उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी निशाने पर होगी। और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जिस तरह आमने सामने आए हुए हैं, तो कल को अगर कोई भी ऐसी गुफ्तगू बढ़ी तो बहुत तलखी में इजाफा हो सकता है। बहरहाल ये इस वक्त खबरें हैं, देखते हैं कि या तो 72 घंटे में हुकूमत एंड होने जा रही है, 48 से 72 या 100 घंटे के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर, और या फिर जो है वो एक बड़ा क्राइसिस पैदा होगा और बड़ा तसादम होगा। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।